السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں غزل اور آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل غزل نعت میں۔ یہ ہے میرے ہسبینڈ السلام علیکم۔ اور میں بھی السلام علیکم۔ ہم لوگ ماشاءاللہ بہت خیریت سے ہیں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اچھے ہی ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں، بہت اچھی ٹاپک ہے۔ جیسے ایک لڑکی نے سوال اس میں کیا ہے کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی اس پہ ہونی چاہیے، تو اس پہ ذاکر نائک سر نے کیا انہیں رپلائی کیا ہے اسلام سے ریلیٹڈ لے کر۔ تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور آپ یہ ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ابھی نیا ہی لگ رہا ہے ہم کو۔ جیسے ذاکر نائک صاحب پاکستان میں ہیں اور وہاں پہ اسپیچ دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی نے یہ سوال پوچھا ہوگا۔ تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں، آج کل کی ینگ جنریشن جو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہاں تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں میں بھی اپنی طرف سے ایک رائے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس میں ان کو جواب کیا ملتا ہے اس ٹاپک۔ میری بیوی جنت میں جائیں گی ہی نہیں۔ میں بولا کیوں بھائی، کیوں نہیں جائیں گی؟ حدیث میں لکھا ہے بیوی اگر شوہر کو ناراض کرے تو جنت میں جائیں گی۔ حدیث صحیح ہے۔ میں بولا حدیث صحیح ہے، اسی لیے میری بیوی جنت میں جائیں گی ہی نہیں۔ اگر تیری بیوی جنت میں نہیں جائیں گی تو بھی نہیں جائیں گا۔ بولا کیوں؟ میرے پاس صبر ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میرا کوشچن یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر۔ یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے۔ اگر یہ پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ کلیشز ہے، اور مطلب اس میں بچوں کا کیا کردار بنتا ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں اس سچویشن کو، اور ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارا کیا حکم بنتا ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں اور کیسے ہم اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کافی زیادہ ہے، اور کل بھی کئی خواتین نے کہا میرے ہسبینڈ ابھی نہیں ہے یہاں، کیونکہ میرے وہاں سو رہے تھے تو وہ اٹھ گئے اور وہ ڈیڈی کے گود میں جانا چاہ رہے تھے، رو رہے تھے، تو ان کو لے کر وہ ٹہلانے نکل گئے ہیں۔ تو بچوں کا کیا اس میں رول ہے، کیا کردار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈومیسٹک وائلنس کا معنی ہے کہ آپ چاہے اپنے فیملی میں آپ وائلنس کر رہے، مطلب مارا ماری کر رہے، یا آپ پیٹ رہے، چاہے مارک چھوڑ رہے، چاہے اسٹیچز آ رہے، تو ڈومیسٹک وائلنس اسلام میں حرام ہے۔ There's a difference between domestic violence and difference between اپنے بچوں کو کوئی تھپڑ مارا تو ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولیں گے، یو ایس اے میں بولیں گے I will call the police۔ وہ یو ایس اے میں، یعنی اگر بچوں کو اپنے تھپڑ مارا ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولتے، تو لیکن آپ پیٹیں گے اس کو، آپ بیچ سے پیٹیں گے، کالا بلو بلیک کر لیں گے، تو یہ حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے جو خاتون نے پوچھی تھی پہلے کہ کین وی بیٹ، تو ضربہ کی معنی میں نے کہا تھا، میننگ بیٹ لائٹلی۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ فیس پہ نہیں مار سکتے، آپ ماریں گے تو کبھی اس پہ مارک نہیں چھوڑ سکتے، یہ ضربہ کی معنی ہے، لائک وتھ اے مسواک۔ تو ڈومیسٹک وائلنس ویئر دیر از ٹارچر، اٹس ٹوٹلی حرام۔ بچوں کا کیا رول ہے؟ پہلا رول یہ کہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے۔ اور لوگ تو غلط فہمی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں تین قسم کی سوسائٹی ہے۔ ایک کہتے پیٹریارکل سوسائٹی، پیٹریارکل مینس مرد ہی اونچا، بس پیٹریارکل۔ ایک ہوتی ہے میٹریارکل سوسائٹی، مطلب عورت ہی اونچی، اور ایک کہتے فیمنزم۔ یہ فیمنزم از اے مسنوما، یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام میں مین اینڈ وومن اوور آل ایکول، آئیڈینٹیکل نہیں ہے لیکن ایکول ہے۔ تو یہ ورڈ فیمنزم ہے، اس کے معنی ہے مین اینڈ وومن ایکول، مسنوما ہے۔ اگر کوئی کہیں گے اسلام میں فیمنسٹ، تو لوگ بولیں گے ارے کیا بول رہا ہے، بٹ انگلش وائز صحیح ہے، بٹ ٹیکنیکلی فیمنزم از اے مسنوما، مطلب جیسا ہندوازم میں مسنوما ہے، برابر نا؟
Hinduism means a person who lives in the valley of Indus Valley. तो डेफिनेशन मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं बुत परस्ती नहीं करता हूं, मैं वेदा में नहीं मानता हूं. आप समझ रहे ना? तो उसी तरीके से फेमिनिज्म इज इंग्लिश वर्ड जिसके मानी है अ पर्सन हु थिंक्स मेन एंड वुमेन आर इक्वल. वो आदमी, वो औरत जो सोचती है मर्द और औरत बराबर है, यकसा नहीं है, बराबर. नाम में बराबर ही है. औरत और मर्द के हुकूक है. कुछ वक्त मर्द ऊंचे है, कुछ वक्त औरत ऊंची है. ओवरऑल बहुत है इक्वल. इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है. इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि माशरे में काउंसलिंग होना चाहिए. काउंसलिंग मतलब वो लोग जो फैमिली के मैटर्स में डील कर सके और काउंसिल कर सके. प्रॉब्लम है आज की तारीख में, आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का काउंसलिंग लेंगे तो पूरे जो ट्रीटमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के आधे तो हराम है. आप बोलेंगे जो खाली दीन के बारे में पढ़ा और माशरा साइकोलॉजी नहीं जानता है तो वो भी प्रॉब्लम है. तो डायकोटमी है, प्रॉब्लम है. हमें ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो दीन को भी जानता है और साइकोलॉजी भी जानता है, मेडिकल साइंस भी जानता है. ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करेंगे तो सही करेंगे. आप अमेरिकन काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो जो आपको देंगे गाइडेंस वो तो दीन के बाहर कर देंगे आपको. अगर यहां करेंगे जैसे कि बोला ना उसको, तकवा करो, नहीं तो आपके पास तकवा नहीं इसलिए आप लाचार है. आप अपाहिज है क्योंकि तकवा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है. तो हम हमारे माशरे में ऐसे लोग को तैयार करना चाहिए. और मुझे पता है कि चंद साल तकरीबन 10 साल पहले जामिया बिनोरी, पता है मुझे जाने का था 2 दिन पहले, तो रोक लिया. इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा. जामिया बिनोरी के अंदर मुझे पता चला कि वहां मीडिया तालीम दीन की भी होती, दुनिया की भी साथ में. अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की भी तालीम, दुनिया की भी तालीम. लेकिन दुनिया की तालीम अगर दीन के नजरिए से देखे, मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने, हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे. ये तो इंसान ने तो अपना मुसलमान बंदर से बने कुरान में लिखा, आदम अलैहिस्सलाम पहले थे. इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना वो एक टेक्निक है. तो ये एक स्पेशलिटी है. अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है. अंग्रेजी से अच्छे काम भी होते, बुरे काम हराम है, अच्छे काम अच्छे. तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स. मेरे वालिद थे साइकेट्रिस्ट, आपको पता है वो डॉक्टर थे लेकिन साइकेट्रिस्ट थे. वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकेट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने, पूरे इंडिया के साइकेट्रिस्ट के प्रेसिडेंट. साइकेट्रिस्ट मतलब यहां तो बोले साइकेट्रिस्ट पागल है. अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास गए इंडिया पाकिस्तान में तो आपके नाम पे तो पागलपन का लग जाएगा. अमेरिका में तो साइकेट्रिस्ट की तो तनख्वाह मिलती थी, उनकी तो इतनी चांदी है. इसको आराम करने का साइकेट्रिस्ट के जाओ, आधा घंटा बकवास करो, ये बिल दे दो $5,000. तो साइकेट्रिस्ट की वो तनख्वाह होती है, इनकम आमदनी बहुत होती है. इंडिया पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट के मतलब पागल हो गया तो लोग बोल के भी डरते. ये गलत है. साइकेट्री इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड. तो मेरे वाले तकरीर भी करते इस्लाम एंड साइकोलॉजी. अल्लाह ने जन्नत फरमाए, रहमुल्लाह. तो ऐसे प्रॉब्लम में वी शुड अ स्पेशलिस्ट. और यूएसए में है, मेरे कई कलीग है, मिसाल यासिर फसाका, शेख यासिर फसाका पीस टीवी पे आते, ही स्पेशलाइज इन काउंसलिंग. शेख यासिर फसाका ही स्पेशलाइज, ही स्टडीड काउंसलिंग, ऑल्सो दीनी आलिम भी है और काउंसलर और सर्टिफाइड काउंसलर है. तो इस वक्त वो जो आपको जो देंगे राय वो इस्लामिक भी होंगी और आपके फैमिली के प्रॉब्लम को हल भी करेंगे. तो हमारे इदारे में भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में वी हैव काउंसलिंग. लेडीज के पास, जेंट्स के पास. कभी साथ में मिलने पड़ता तो महरम जरूरी है. तो मेरी एलिया भी करती थी काउंसलिंग, मैं भी करता था काउंसलिंग. तो इस मौके पे किस तरीके से
कुरान की कौन सी आयत पे अमल करना चाहिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस से क्या करना चाहिए। और अगर आप सही देंगे, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा मैं आपको, वक्त बहुत कम है, इतना वक्त होने के बाद भी माशाअल्लाह बहुत लोग हैं। एक मेरे पास एक मुसलमान आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मैं बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? वो हदीस में लिखा है क्या बीवी अगर शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएंगी, हदीस सही है। मैं बोला हदीस सही है, इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मेरा कौन गलत? मेरी बीवी गलत। मेरा सुनो, जन्नत तेरी बीवी के बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए 4 चीज चाहिए, ईमान वल असर, पूरी तफसीर नहीं दूंगा, वक्त जाएगा। ईमान चाहिए, अमल सालिहात चाहिए, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। बराबर? अगर तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएंगी तू भी नहीं जाएगा। बोला क्यों? तेरे पास सब्र ही नहीं है। अगर तेरी बीवी कुछ करती है, तू नाराज होएगा तो फरिश्ते उसको नाराज होंगे ना। तू नाराज क्यों होता है? तू नाराज मत हो तो फरिश्ते उससे नाराज होंगे, वो भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। समझे? वो तो पूरा दोष बीवी को, बीवी मुझे परेशान करती, जहन्नम में जाएंगी। क्योंकि अगर फरिश्ते उसको कोसेंगे, अगर वो शोहर को नाराज करे, बराबर, तू नाराज क्यों होता है? तू अगर नाराज नहीं होगा, तेरी बीवी भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। उसके बाद पूरा चेंज हो गया, झगड़े बंद हो गए। छोटी सी आयत, उसने मुझे हदीस कोट की, मैंने कुरान की आयत कोट किया, हदीस सही थी। तो इस तरीके से बोलना, तो बीवी मेरे बाद में बोलती है दूसरे के, तू अभी माशाअल्लाह झगड़े बंद हो गए। वो वन ट्रैक माइंड, मेरी बीवी गलत, मैं सही, मुझे नाराज की जन्नत में जाएंगी। अरे अल्लाह के रसूल कहते हैं सबसे बेहतरीन मोमिन वो जो अपने फैमिली के साथ बेहतर है, बीवी के साथ। आधी हदीस कोट करते, अपने फायदे की हदीस कोट करते। यही तो प्रॉब्लम है माशरे में। आप तकरीर में उलमा को सिर्फ सुनेंगे वन साइडेड हदीस, कितना अच्छे से हल हो गया। प्रॉब्लम में यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम नाराज होते इसलिए प्रॉब्लम है। तुम नाराज हो ना, आराम से बैठो, मैं कुल वल्लाह पढ़ो, पूरे फातिहा पढ़ो, नाराजी चलेगी, शैतान तुम में। तुम बीवी की बात करते, शैतान तुमको जहन्नम लेके जा रहा है बीवी के साथ। तो इस तरीके से काउंसलिंग करो, प्रॉब्लम ही सॉल्व। लेकिन अफसोस की बात है, मैं बस काउंसलर नहीं है, मैं बहुत कम करता था, बिकॉज टाइम की किल्लत है, सब तो नहीं कर सकते ना, तो कभी कभी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास उलझे हुए उल्मा है, और है पाकिस्तान में, क्यों नहीं, जो माशरे को जानते हैं, जो एक हदीस के बदले दूसरे हदीस कोट करे और समझाए, तो मेरे नजदीक ये जो आपके प्रॉब्लम में पीडोफिलिया है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इस्लाम इसको आराम से दूर कर सकता है। अगर आपके पास सही उल्मा जिनके पास साइकोलॉजी की तालीम है, दिस डोमेस्टिक वायलेंस आराम से जा सकता है। यहां तो लोग समझते मेरा हक है बीवी को मारना। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35, कव्वामुन अलन निसा, मैं कव्वाम हूं, खलास। और जाके बाहर आके बोलेगा माशाल्लाह सही, क्या मर्द का बच्चा है। औरत पे हाथ उठाता, मर्द का काय का बच्चा है भाई। औरत पे हाथ उठाता, मर्द का बच्चा। कौन मर्द का बच्चा औरत पे हाथ उठाता? तो ये अगर आप जहन खोलेंगे, इस पे लेक्चर होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे लेक्चर होना चाहिए। अगर पता चले किया तो उसको भान में क्या कि सजा दो उसको ना। यहां लॉ कुछ है क्या नहीं पाकिस्तान में? अगर इतनी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी, है लॉ ना, माशाअल्लाह लॉ तो है, लेकिन इंप्लीमेंट कम हो रहा है ना भाई। बहन जी इनको कांटेक्ट करो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। लगता है पुलिस डिपार्टमेंट के। तो
आप सबने देखा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये वीडियो, वाकई में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी टॉपिक पे इन्होंने अपना बयान रखा है और सबसे अच्छी बात है इस्लाम से रिलेटेड ये बताते हैं। तो इनका सबसे अच्छा जो मुझे लगा है इस स्पीच में कि टोटली हराम है हमारे इस्लाम में, किसी भी तरह का वायलेंस हमारे इस्लाम से हराम माना गया है। और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इस्लाम में अगर है भी आप किसी को मार रहे हैं या बच्चों को मार रहे हैं तो बहुत ही लाइटली, जैसे कि एक मिसवाक की तीली से, और फेस पे भी हराम है मारना। वैसे तो हराम है ही, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई करता है तो बहुत ही, देखिए। और हमारे माशरे में क्या है कि अगर बच्चे पढ़ते हैं तो मौलाना मोटे मोटे डंडे लेके भी पीटते हैं बच्चों को, उसे याद कराने के लिए, उसे जैसे भी मतलब एक टॉर्चर डालते हैं। हमारे घर में भी क्या माहौल दिखने को मिलता है कि मतलब नौज़ुबिल्लाह, हमारे घर में तो नहीं है माशाल्लाह, लेकिन आस पास या और लोगों के वहाँ भी ये चीज़ें बहुत आम है कि मर्द अपने आप को ऊंचा समझते हैं और घर में बाकी लोगों को दबा कर रखने शौक़ होता है उनका कि मतलब मैं जो हूँ वही हूँ। तो ऐसी सी चीज़ें बहुत आम हो रही है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम में, अच्छा एक चीज़ इन्होंने ये बताया है लास्ट में कि हाँ, बीवी पे सारी चीज़ें फ़र्ज़ है। मतलब बीवी अगर जो चीज़ें इस्लाम में हैं वो करती हैं तो ठीक है, नहीं तो वो दोज़खी है। तो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये भी बताया है कि मतलब सब्र, अल्लाह ताला ने तो सब्र भी बोला है, सब्र भी होना चाहिए। अगर सब्र आप करते हैं तो घर का माहौल ऑटोमेटिक खुशनुमा रहेगा। तो बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी स्पीच माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं है यहाँ, क्योंकि मेरे ईमान सो रहे थे तो वो उठ गए और वो डैडी के गोद में जाना चाह रहे थे, रो रहे थे, तो उनको लेकर वो टहलाने निकल गए हैं, टहल रहे हैं। तो ये था वीडियो। आप सब ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वीडियो। और बहुत अच्छा ये टॉपिक, जिसने भी ये सवाल उठाया बहुत अच्छी टॉपिक पे उठाया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आम है और ये चीज़ें सबको समझना है। अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें सबको समझना है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, बीवी शौहर सब इक्वली हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, वो कभी किसी में डिफरेंस नहीं रख सकते। उन्होंने जैसे मखलूक को बनाया, जैसे ही हम सबको बनाया है, वैसे ही उन्होंने हर चीज़ों को बराबरी का एक दर्जा दिया हुआ है। तो ये था वीडियो हमारा। आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। हमारे वीडियो देखकर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखें।